Item numbers 11 to 14. Srimati Sumitra Mahajan. या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बोलिए। जी, माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आज वास्तव में रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं पार्टी की तरफ से खड़ी हुई हूँ। मन में ये आ रहा है कि वास्तव में इस देश के इतिहास में पहली बार एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति का हम सामना कर रहे हैं। जरा शांत हो जाइए, यहाँ पे इसमें बातचीत बंद करिए आप। काइंडली बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए वहाँ पर। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। जी हाँ, बोलिए। जी अध्यक्ष महोदया जी, वास्तव में बहुत ही अलग परिस्थिति इस देश में हो रही है। जो मंत्री जी जिनके, अब मुझे एक बात तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको संबोधित तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन जो मंत्री जी दमखम के साथ यहाँ पर कुछ कह रहे थे, ऐलान किया था उन्होंने कि रेलवे लाइन पर मौत स्वीकार्य नहीं है, जान है तो जहान है। और हुआ क्या? कर रहे डिबेट जाए 2-4 घंटे के बाद मुकुल रे का सुबह शपथ विधि हो चुकी है कि पहले प्रतिपक्ष के हमारी All right, let her continue. He is coming. Yes. No, he will come. Anant Kumar ji, he is coming. मगर रेल मंत्री है कौन? शुरू कर रही है, आने आ रहे हैं। Madam, कोई छोटा बनाइए। he is in the other house. For introduction, he is in the other house. He is in the Rajya Sabha for introduction. He is in the other house. Please allow me. Yes. देखिए वो कुछ कह रहे हैं, ऐसे नहीं करिए, ऐसे क्या कर रहे हैं? He's the honorable minister saying something. MOS is saying something. I want to say something. MOS is saying something. सुन लीजिए ना। हाँ, जरा सुनो। Madam Speaker, the Honorable Prime Minister introducing the Minister in the Rajya Sabha. The Honorable Prime Minister introducing the Minister in the Rajya Sabha. This is what is this? He is coming again. He is introducing in the Rajya Sabha. We are here. Madam, allow me, I will speak on the Honorable Prime Minister introducing the Minister in the Rajya Sabha. Introduction is there in the Rajya Sabha. Yes. Yes, 1 minute. Yes. आप बैठ जाइए, हाँ बैठिए, ऐसे बैठ जाइए। देखिए, ऐसे बैठ जाइए। His introduction is being done. That's what I understand in Rajya Sabha. He'll join here shortly. And Minister of State is also competent. You also know about it. Minister of State is also competent. आप शुरू करिए, वो आ जाएंगे। आप शुरू करिए। Let's not waste the time of this. Let's not waste the time of the house. आप खड़े हो जाइए। हाँ, शुरू करिए। नहीं। That is not an issue. That is not an issue. That's not the issue. Yes, honorable MOS. Yes, honorable MOS. What do you? Yes. No, you want to
say something on that He issue? wants to see. Madam, I was in Rajya Sabha now. He has come, I think. He was in Rajya Sabha and he has come. Yes, yes, come. अब हो गया. No problem, अब solve हो गया. बैठिए. They are अब बोलिए unnecessarily अब. You tell that I was introduced there. That's why late I was there introduced. ये हो गया क्या? अब आ गए. अब बैठ जाइए. अब बैठिए. Nothing else will go in record. Please take your seat. Please take your seat. Now you continue. नहीं, आप बैठ जाइए. आप बैठिए. सब लोग बैठिए. क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? प्लीज. हाँ, बोलिए. It is a system that the new minister is taken for introduction to Lok Sabha and Rajya Sabha both. Accordingly, Mukul Rai was in Rajya Sabha, Prime Minister introduced him, and for which 2-3 minutes, 4 minutes have been delayed. I don't know why the major ruling party is creating such a problem. Mukul Rai is already over here. बोल बैठिए. आपके अपनी पार्टी की बोल रही हैं. डोंट डिस्टर्ब. अरे पाठक जी, आप अपने सदस्य को मत डिस्टर्ब कर. नथिंग एल्स विल गो इन रिकॉर्ड. बोलिए. अब आप बोलिए. माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं. Madam, I have been introduced by the Prime Minister in the Rajya Sabha at 12:00 hours. I was there, and as and when it was completed, I rushed to the Lok Sabha. अब आप बोलने दीजिए. सुमित्रा महाजन जी को बोलने दीजिए. अब बोलिए. जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय नए रेल मंत्री जी का स्वागत करते हैं हम. लेकिन मैं उनको यही बता रही थी कि अब मुझे बार बार बोलते समय पूर्व मंत्री ने क्या कहा ये कहना पड़ेगा. और इसलिए पूर्व मंत्री ने बड़े जोर शोर से अपने भाषण में कहा था कि रेल लाइन पर मौत स्वीकार्य नहीं है. जान है तो जहान है. और बड़ी दुख भरी एक प्रकार से जान तो नहीं, उनकी कुर्सी ही जोखिम में पड़ गई. रेल मंत्री जी इस बातों को ध्यान में रखेंगे. कभी कभी जिस दिन से ये रेल बजट पेश हो गया, पहले तो मैं कहूंगी जब से ये यूपीए की सरकार बनी है महोदया, तब से समझ में नहीं आ रहा है. इंजन चला रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को आगे ले जाने की. कभी भी कोई भी चेन खींच रहा है, गाड़ी को रोकने की कोशिश हो रहा है. कभी भी कोई भी अपने रेल के डिब्बे के कपलिंग निकाल करके धमकी दे रहे, हमारा कोच हम अलग करेंगे. इस तरीके से तो स्थिति इस सरकार की हो रही है. लेकिन 2-3 दिन से तो और अजीबोगरीब परिस्थिति हो गई थी. रेल बजट पेश करने के बाद तुरंत पहली बार किसी मंत्री की ये स्थिति हो गई कि मुझे वो एक सिनेमा का गाना याद आने लगा देख करके कि हीरो को बांध करके बोला जाता है ना कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए. जी, 2 दिन तक तो यही स्थिति, यही बड़ा हुआ वो चलता रहा. जिसने बजट पेश किया उसके साथ ये होता रहा. उसके बाद नहीं समझ में आ रहा था कि हमें रेल बजट पे बोलना है. मैं तैयारी कर रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसके सामने बोलना है, किसको जिम्मेदार मान करके बोले. ये स्थिति ये रेल बजट की भी हो गई है और इस सरकार की भी ये अजीबोगरीब स्थिति. रेल बजट आज हम देख रहे हैं गत 8-10 साल से भी, इसके पहले भी थोड़ा यही होता आ रहा है, मगर इस 10 साल में तो स्थिति ये हो गई है कि जब रेल बजट पेश होता है, वास्तव में अपेक्षा ये होती है कि ये पूरे देश का बजट होता है. पूरे देश की रेल को सामने रख करके
पूरे देश के विकास के मतलब को सामने रखते हुए बजट पेश होता है, लेकिन स्थिति ये बन गई है कि रेल बजट जब पेश होता है तो ऐसे लगता है मेरी पार्टी मेरा प्रदेश, ये प्राथमिकता पर। बाद में अगर अवसर मिला, कुछ बचा कुचा, तो हम बाकी देश की पूरी सोचेंगे। और इसके कारण ये होता है कि बजट तो बंद करके रह जाता है, प्राथमिकताएं सतत बदलती जाती है। और इसलिए ये जो रेल बजट या भारतीय रेलवे, ये वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये रेलवे केवल लोकलुभावन घोषणाएं, अपने अपने क्षेत्र में सुविधाएं देने की एक व्यवस्था बन करके रह जाती है और इसलिए एक संपूर्ण रेल नकारात्मक रास्ते पर चल पड़ी है। हालांकि अब मुझे कभी लगता है मैं पूर्व रेल मंत्री की तारीफ करूं कि नहीं करूं, नहीं तो मुश्किल आ जाती है तुरंत, लेकिन वास्तव में कुछ बातों में तो करना पड़ेगी। पूर्व मंत्री हमारे दिनेश जी की सराहना करती हूं कि उन्होंने केवल इतना ही नहीं सोचा, तो उन्होंने 2 एक्सपर्ट कमेटियां जरूर बनाई और एक्सपर्ट कमेटियां बना करके मॉडर्नाइजेशन और संरक्षा उपाय की दृष्टि से, पूरे रेल की दृष्टि से विचार किया, ताकि ये टुकड़े टुकड़े में परियोजनाएं नहीं देना पड़े और एक संपूर्ण रेल की दृष्टि से एक कुछ विचार करें। वो रिपोर्ट भी हमारे सामने है और वास्तव में वो रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट जो है, ये दोनों रिपोर्ट, माननीय अध्यक्षा जी, मैं पूरे रिपोर्ट तो नहीं पढ़ रही हूँ, मगर उसकी जो शुरुआत की बातें हैं दोनों रिपोर्ट की बहुत भयानक है। बहुत सोचना पड़ेगा इसमें जो ये काकोडकर साहब की जो रिपोर्ट है, ये अनिल काकोडकर की रिपोर्ट में भी उन्होंने जो पहला ही एक वाक्य उसमें बोला है, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अनलेस सम कॉन्क्रीट मेजर्स आर टेकन। ये बात तो उन्होंने बोल दी कि किस तरीके से ये पूरी रेलवे एक कोलैप्स होने की स्थिति में है। दूसरी जो रिपोर्ट है माननीय सैम पिट्रोडा, और उसमें और भी बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे उसमें हैं, उन्होंने भी जो बात कही है, एट प्रेजेंट, मैं उसमें से कहना चाहूंगी, एट प्रेजेंट इंडियन रेलवे इज क्लोज टू फॉलिंग इनटू वेरी विशियस सर्कल of diminishing efficiency, falling safety standards, eroding share in national freight and passenger traffic, and possibly ending up as a burden on the national economy instead of being its bulwark and vital support. यानी सपोर्ट करने के बजाय ये रेलवे की स्थिति आज हो गई है। काम करने की प्रवृत्ति ने कहा है, इम्प्लीमेंटेशन बग की बात भी इसमें करी है और इसलिए एक पूरी मॉडर्नाइजेशन की योजना बनाई गई। उसमें 15 फोकस एरिया ये पेट्रोडा कमेटी ने बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगी कि 15 फोकस एरिया बनाएं और उसमें करा क्या है, रेल मंत्री जी अपने रेल बजट में कहते हैं कि इसके लिए 5.60 लाख करोड़ ये लगेंगे अगर हम इस पर अमल करना चाहेंगे और रेल में सुधार करना चाहेंगे। और इसके लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पूरी बातें हैं, वो पूरी बातों में उनकी दृष्टि कहाँ पर है। अपने भाषण में उल्लेख करते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टिकोण पत्र है उसका उल्लेख उन्होंने किया है और उसमें वो कहते हैं कि ये 50 लाख करोड़ की निवेश की योजना पूरे देश की दृष्टि से है। उसमें 25 लाख करोड़ निजी सेक्टर से, 25 सरकार के द्वारा वगैरह वगैरह कहते हुए वो अपेक्षा कर रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ कम से कम 10% रेलवे को मिलेगा, ये उनकी अपेक्षा है। और दूसरी अपेक्षा वो कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री रेल विकास योजना की, और उसमें वो भी अपेक्षा करते हैं 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता।
और ऐसे करके एक बहुत बड़ा कैनवास खींचने की बात आती है। ये सब पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गया, बचपन में एक कहानी सुनाते थे बेर के पेड़ की, पिताजी के बेर के पेड़, और सब बच्चे आपस में ये कर रहे हैं, बहुत आमदनी होगी मगर बाप मरेगा और बेर बटेंगे। ये कब होगा, कब हाथ में आएगा, कोई नहीं जानता है। ये हो गया, ये विजन 2020 की बात की है। अब विजन 2020 और इसमें ये एक्सपर्ट कमेटियों की रिपोर्ट, और रेल मंत्री कहते हैं कि अगर इसमें जो बातें कही है तो पूरे विजन 2020 10 साल में पूरा करने के लिए 14 लाख करोड़ की आवश्यकता। अब देखो आंकड़े तो बहुत बड़े बड़े दिए। इसका मतलब हुआ प्रति वर्ष 1.4 लाख करोड़। आज हमारे हाथ में जो बजट है, मंत्री जी आपको जो काम करना है कितना है, 60,100 करोड़, यानी 42%। अगर उस हिसाब से बात करें तो क्या होगा। अब मंत्री जी ने बात तो बड़ी जोरदार कही थी माननीय दिनेश जी ने कि बाइट द बुलेट, हम करेंगे, हिम्मत से करेंगे। अब बुलेट तो उन्हीं को लग गई, बाकी कुछ नहीं हो पाया। सोचना पड़ेगा इन सब बातों पर। अब योजना तो बनाई, बड़ी बड़ी एक्सपर्ट कमेटी तो बनाई, हाथ में क्या है, आज की तारीख में हाथ में क्या है। एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव तो बहुत दिए हैं, रेलवे ट्रैक की बात की थी, रेलवे पुलों की बात की, और हम हमेशा हर साल हम भाषणों में कहते आए हैं कि किस प्रकार आज हजारों रेलवे पुलों की दुर्गति हो गई। मैं तो अब उनको जर्जर भी नहीं कहूंगी, दुर्गति हो गई है। अब उसके लिए वो कहते हैं आवश्यक कितने हैं, तो 63,212 करोड़ चाहिए, यानी प्रति वर्ष 12,642 करोड़ आवश्यक है। आप आवंटन कितना कर रहे हो, यानी वो जो बड़ी बात हो रही है रेलवे के सुधार की, इसलिए बता रही हूं। अभी आवंटन कितना किया है, 6,467 करोड़, आधा आवंटन इस साल का आवश्यकता से। आवंटन आधा, खर्च कितना होता है वो तो हम हमेशा देखते हैं, आवंटन तो बड़े बड़े होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जब बात करती है, देखती है रिवाइज एस्टिमेट कितना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना, तो बात सामने आती है वास्तविकता की। सिग्नलिंग टेलीकॉम के लिए, उसके लिए भी 5 साल में 39,110 करोड़ चाहिए, ऐसा कहा है ना, यानी प्रति वर्ष कितने चाहिए, तो 7,822। ये तो सब टेक्निकल आवश्यकता की बातें हैं। आवंटन कितना किया है हमने, 2,002 करोड़। परसेंटेज देखो आवंटन का कि हम क्या करना क्या चाहते हैं। हास्यास्पद स्थिति तो इसके आगे तब बनी, मैं पढ़ते पढ़ते चली गई, और फिर आ गई यात्री सुविधाओं की बात, कर्मचारी कल्याण की बात। अब उसमें मैं आंकड़ों पे तो नहीं जाती, मगर देखो 2 पैरा में फर्क कितना आ गया। पैरा 41 उनके रेलवे बजट के भाषण में वो कहते हैं, दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं कि क्षमता संवर्धन और दोनों बातों के लिए, यात्री सुविधा और फिर अपने कर्मचारियों के लिए। और इसमें उन्होंने कहा है कि यात्री सुविधाओं के लिए गत बजट में 762 करोड़ रुपए दिए गए थे, मैं इस बार 1102 करोड़ यानी ज्यादा दे रहा हूं। गए समय हमने क्या किया, वो भी पहली बात तो सोचने लायक है। फिर उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी है उनके लिए कार्यस्थलों में सुधार, और गए समय उसमें कई बार बात हुई थी, नर्सिंग कॉलेज की भी बात हुई थी, वो तुम्हारी मेडिकल की बात हुई थी, और एम्बुलेंस सुविधा की बात हुई थी, मकान, अच्छे मकानों की बात हुई थी। गए समय 717 करोड़ रुपए दिए थे, इस बार बढ़ाया है 1388। लेकिन ये सब करते करते जब आगे पहुंचते हैं तो कहाँ तक आते हैं, यानी देना तो ये सब कर्मचारियों के लिए, वास्तव में कर्मचारी काम करते हैं, मैं भी मानती हूँ इन बातों को। लेकिन मुझे फिर एक बात याद आ गई, हमारे बचपन में हम एक नाटक देखते थे, संशय कल्लोळ, मराठी था,
और उसमें वो मालिक अपने नौकर को कहता है कि इस बार दिवाली पे बहुत इच्छा हो रही है, तू बहुत अच्छे से काम करता है, तो दिवाली पे इच्छा हो रही है तुम्हें सोने का कड़ा दे दूं। नौकर बड़ा खुश हो रहा है कि सोने का कड़ा मिलेगा। फिर बोलता है सोने का कड़ा दे दूं, लेकिन संभालेगा कहाँ तू? ऐसा करता हूँ तुम्हें अच्छा एक पागोटा ही दे देता हूँ, फेटा दे देता हूँ, बड़ा बांध करके घूमेगा तू, अच्छा लगेगा, जरा रोब बढ़ेगा। तो भी वो पगड़ी देता हूँ, तो भी वो खुश होता है, चलो पगड़ी तो दे दो। और करते 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 बात ये आती है, यानी एक जूते की भी बात नहीं होती है। वैसे यहाँ पर हुआ है, हमारे पूर्व रेल मंत्री ने बात तो करी कि हम क्या क्या देंगे, उसके पूर्व रेल मंत्री ने भी बात करी, अस्पतालों की बात करी, मकानों की बात करी, वास्तव में ये आवश्यकता है। लेकिन अब हमारे मंत्री कहते हैं कि कर्मचारियों पर वर्दी बनाने पर गाड़ी रुक गई। यानी कहाँ से शुरुआत हो गई। और अध्यक्ष महोदया जी, हम कहाँ पे आ गए, मेरे ये समझ में नहीं आता है। जो फाइनेंशियल बजट का जो अनुमान जो उन्होंने जो लगाया है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें भी मैं बताना चाहूंगी, जो उन्होंने बात की किस तरीके से वो करेंगे, क्या वो करेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक मिनट उनका भाषण का ये तो निकाल दूं। प्रपोज उन्होंने कहा हम क्या क्या करेंगे, और उसमें वो कहते हैं कि टारगेट बनाए हैं, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इस साल जो वास्तव में हुआ है, नुकसान ही नुकसान में गए हैं। इस साल का टारगेट उनका था जो 993 मैट्रिक टन लोडिंग टारगेट था माल का, माल यातायात का, वो पूरा तो नहीं हुआ, 970 हो गया। और वही स्थिति पैसेंजर की हो गई है। और इसलिए इस साल का जो उन्होंने कहा है कि जो हमारा ये बना है, सकल आय जो बनी है पूरी इससे यातायात से, वो 1,03,917 करोड़ बनी है, यानी 2,322 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। 3,000 करोड़ के वर्किंग एक्सपेंसेस और ये भी सब हो गया। फिर कुछ फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने उधार ली है, और फाइनेंस मिनिस्टर से उधार लेते हुए जैसे तैसे पूरी करी, जो वापस करना है। इस बार उनका जो कहना है, उन्होंने कहा इस बार हम फ्रेट लोडिंग 1025 मैट्रिक टन इस बार करेंगे, बढ़ाएंगे 5.67। चलने दीजिए, आए आप जी चलो, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बार बार नहीं हम टोकेंगे, क्योंकि ऐसा है, ये तो आना जाना लगता है, चलता रहेगा। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं तो बोल रही हूँ माननीय मंत्री जी। अब उन्होंने जो कहा है कि इस बार की जो बात करते हैं जब, और इस बार उनका कहना है कि हम करीब 5.67 फ्रेट लोडिंग बढ़ाएंगे 1025 मैट्रिक टन, ये उनका कहना है। गए समय 970 था, इस समय बढ़ाने की बात करते हैं। पैसेंजर भी गए समय बढ़ा तो नहीं था, कम ही हुआ था, इस समय फिर वो बढ़ाने की बात करें कि हम बढ़ाएंगे। और ये सब करते हुए, मिलाते हुए उनका कहना है करीब 1,32,000 करोड़ के आगे हम आमदनी ले जाएंगे। और वर्किंग एक्सपेंसेस ये जो उन्होंने कहा है 11.56, और बोले हमारा जो रेवेन्यू प्रोजेक्टेड 27.6%। और बड़ी इसकी सांस ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। पिक्चर तो बहुत अच्छा दिखा दी हमें, ये कहा भी सही, मगर क्या इसमें एक बात तो मैं कहूंगी, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है? वो भी नहीं रखा है कि कितना बढ़ेगा, कैसे, और वो भी क्यों बढ़ेगा, ये भी मैं बताऊं कि बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई कम होने का तो नाम तो कहीं लिया ही नहीं है। एक बात और इसमें करी है, हमारे
मंत्री जी एक बात करते हैं कि हम कुछ खर्चा कम करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग रेशो ये 95% हो गया, उसको कम करते लाएंगे। और ये सब करने के लिए ये आंकड़ों की जो बाजीगरी है उसके लिए उन्होंने करा क्या है, मैं ध्यान में लाना चाहूंगी। हमारी ममता मही नाराज तो हो गई, 5 पैसे 3 पैसे 4 पैसे जो भी बढ़ाए थे वो बढ़ाना चाहिए कि नहीं, अब तो कोई उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, मगर उसके लिए नाराज हो गई। लेकिन उसके पहले एक बात भी ध्यान में नहीं आई इनके कि जिस तरीके से धोखा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के साथ धोखा हुआ है, वो धोखा तो ये हुआ है कि 6 मार्च को जो कि एक जो कह रहे हैं हम लोडिंग इतना बढ़ाएंगे उससे इतनी आमदनी होगी, 6 मार्च को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वास्तव में जब बजट पेश होने वाला है, पार्लियामेंट जब लगने वाली है, तब ये करना नहीं चाहिए, मगर इन्होंने किया। और 6 मार्च को एक अधिसूचना जारी करते हुए इन्होंने माल भाड़े में अचानक वृद्धि की है। धोखा वैसे तो पहले भी होता रहा इस फ्रेट को लेकर के। हमारे पहले के जो एक मंत्री थे वो बताते थे मैंने तो बड़ी रेल में सुधार किया है, फायदे में लाया हूं और उस समय उन्होंने लोडिंग बढ़ा दिया था, परवाह नहीं की थी, वैगन में लोडिंग बढ़ा दिया है। 20 मैट्रिक टन या CC+2 उस समय करते थे कैरिंग कैपेसिटी में, और थोड़ा बढ़ा करके एक CC+2 का एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, उसको उन्होंने CC+8+2 तक बढ़ा दिया। ये नहीं देखा कि स्थिति क्या होगी, ट्रैक की स्थिति क्या होगी, वजन ढोने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं, एक्सेल लोड हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं, इसको ध्यान नहीं रखा। किस प्रकार रेलों की स्थिति हो जाएगी वो आने वाला सोचे, मैं क्यों। परिस्थिति ये हो गई है, आज मैं हूं तो मैं केवल अपनी बात करूं, मेरे इसमें सब मजे में रहे, मैं आगे आने वाले की क्यों सोचूं, वो तो आने वाला देखेगा। ये आज देश की स्थिति हमारे हो गई है कि हम उतना ही, मैंने जो शुरू में कहा, उतना ही सोचते हैं, आगे की नहीं सोचते हैं, देश की कोई नहीं सोचता है। मैं, मेरा प्रदेश, इसके आगे मेरे राष्ट्र का क्या होगा, मेरी राष्ट्र की संपत्ति का क्या होगा, ये नहीं सोचा जाता है। और इसलिए उस समय उन्होंने लोड बढ़ा दिया वैगन में, और ये बढ़ा करके धोखे से ज्यादा लोडिंग करके फायदा दिखा दिया। अब की बार इन मंत्री जी ने जो किया है वो तो किसी के ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि 6 मार्च को एक नोटिफिकेशन किया जाता है, और इस नोटिफिकेशन में जो बात उन्होंने की है वो बात केवल फ्रेट चार्जेस बढ़ाने की नहीं, वो तो फ्रेट चार्जेस बढ़ाने की तो बात है ही, मगर इतनी ज्यादा वो है कि उसमें उन्होंने जो बात की है वो बात ये है कि ग्रेडिंग, यानी उससे ये होगा कि हमारे फूड ग्रेन्स भी महंगे होंगे। इन टोटो किस तरीके से केवल 20% बढ़ाने की बात है, वो 40% तक जाएगा, क्योंकि 2 तरीके से बढ़ाया है। पहले किलोमीटर का जो एक बीच की स्लैब रहती थी वो पहले 25 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर तक 500 किलोमीटर के बाद बढ़ती थी, फिर 1000 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर के स्लैब हुआ करती थी। महोदया, इसमें 6 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। शुरुआत ही 100 किलोमीटर के स्लैब से करी है, शुरुआत ही, और उसके बाद जो बढ़ाया है वो फिर 1000 के बाद 250 किलोमीटर की स्लैब आ गई, और 2000 किलोमीटर के बाद 2001 से एकदम 2500 किलोमीटर की स्लैब। यानी आनंद कुमार जी, दिल्ली से बेंगलोर अगर कोई फ्रेट ये जाती है मालगाड़ी, तो वो दिल्ली से बेंगलोर शायद अगर 2297 किलोमीटर या ऐसा कुछ ये होगा अंतर, मगर उस माल यातायात ढोलने वाली जो कंपनी हो, जो भी कोई हो, उस पर जो लगेगा आपको किराया वो लगेगा 2500 किलोमीटर का, यानी यूं ही आपको 250 किलोमीटर का ज्यादा देना पड़ेगा। ये पूरा अगर इसका आप देखोगे तो ये पूरा इस तरीके से इन्होंने बढ़ाया है, यानी इतना ज्यादा भी बढ़ेगा इसमें। एक बात और करी है अध्यक्ष महोदया
किसी के ध्यान में नहीं आया। ये जब माल ढुलाई होती है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है, कोल की एक कैटेगरी है, लोहा की एक कैटेगरी है, उसी प्रकार फूड ग्रेन और इसकी भी एक अलग कैटेगरी है। उसमें भी फूड ग्रेन की 130A करके कैटेगरी हुआ करती है, उसमें कुछ कंसेशन होता है। ये 130A कैटेगरी हटा दी गई, यानी अब फूड ग्रेन भी जो इधर से उधर जाएगा, दाल हो, दलहन हो, तिलहन हो, चावल हो, गेहूं हो, उस पर भी ये बढ़ा हुआ जो किराया है, फ्रेट रेट है, वही बोल रही हूँ, वो बढ़ेगी। यानी कितनी बढ़ेगी? आप जानते हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, जब किसी बात का दर तय किया जाता है 15% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ी जाती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर जोड़ी गई तो 1 किलो पे पहले तो 56 पैसा तो उनका ही किराया बढ़ेगा, वो जोड़ करके अपना मुनाफा जोड़ करके 1 किलो का अनाज 1 रुपया से 1.5 रुपया तक महंगा हो जाएगा बाजार में, इतनी महंगाई बढ़ेगी। ये मैं केवल अनाज की बात कर रही हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, आम आदमी की सरकार है, हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं किसी के ध्यान में नहीं आया, तुरंत 7 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने ये बताया है कि अनाज तो महंगा होगा ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो कोयला ढोती है, कोयला लाती है, पहले तो हमारे मध्य प्रदेश की भी लड़ाई चल रही है कि हमारे यहाँ जो खदानें हैं उसमें से हमें कोयला नहीं मिलेगा पावर प्लांट के लिए, हमें दूर से लाना पड़ेगा। और अब जो दूर से भी लाएंगे तो इस प्रकार से अगर हम महंगा लाते हैं तो महंगा लाने के बाद हमारे यहाँ जो बिजली का उत्पादन होगा वो हमें कितना महंगा पड़ेगा, और अगर वो महंगा पड़ेगा तो इसका भार किस पर आएगा? घर में आम आदमी, किसान जो बिजली जलाएगा उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं भार आना है। सभी वो तो बोला ना, ये क्या हो रहा है? सुमित्रा जी अब आप समाप्त करिए, आपका समय समाप्त हो गया। बिल्कुल हो गया, मेरा इतना ही कहना है। Now nothing else will go in record. सुमित्रा जी बोलेंगी, जो आप बोल रहे हैं वो बोलेंगी वो। तो माननीय अब अध्यक्ष आप समाप्ति भी करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इतना यही कहना है कि ये बात जो है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फ्रेट चार्जेस बढ़ा करके जो बात की है कि बड़े हम 27.6% हम ऊपर रहेंगे और बड़े अच्छे पोजीशन में रहेंगे, आखिर कहीं ना कहीं आम आदमी पर ही इसका भार पड़ना है, आम आदमी के लिए ही कीमतें बढ़ना है। तो केवल रेल किराया तो ऐसा होगा जो प्रवास करेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा, समझ लो आप, उसको देना पड़ेगा ज्यादा। मगर ये तो जो रेल से नहीं जाता है उसको भी कहीं ना कहीं अनाज से लेकर पावर से लेकर के हर चीज कहीं ना कहीं उसके लिए महंगी हो जाएगी। इस बात पर हम ध्यान दें। मैं और 2 ही पॉइंट ये कहना चाहूंगी कि कहीं बड़े प्रभावित हमारे पूर्व मंत्री थे, अच्छी भी बात है, और उन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी ने बात कही थी और उसके कारण अनेक अथॉरिटीज का गठन करने की बात कर रहे हैं। रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी, नेशनल रेलवे हाई स्पीड अथॉरिटी, कॉरपोरेशन भी, रेल रोड ग्रेड सेपरेशन कॉरपोरेशन, लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, अनेक। उसका अर्थ ये होता है कि वर्तमान में हमारे जो काम कर रहे लोग हैं ये या तो सक्षम नहीं है, कर भी नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं अविश्वास का भाव पैदा हो जाता है। हालांकि वो जो अगर रेलवे सेफ्टी रिव्यू समिति, उसका उल्लेख है काकोडकर जी के रिपोर्ट में कि उन्होंने कोई गलत आपको ये नहीं दिया था, सलाह उनकी कोई गलत होती है ऐसा नहीं है। देखो वो कहते हैं अपने रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी जो है उन्होंने 1998 में यह कहा था कि इफ दिस कमेटी वेयर टू मेक ओनली वन रिकमेंडेशन, it would be for Indian Railway to rigorously monitor implementation of safety items already known and languishing at various stages of consideration execution. The most serious deficiency in safety matters is that these are inordinately delayed or insufficiently funded. यानी वो भी वही कहते हैं मगर हम उन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते।
अब ये एक्सपर्ट कमेटी ने अलग अलग कहा है, अथॉरिटीज बनाएंगे, तो एक तो अविश्वसनीयता बढ़ेगी, काम और ढीला हो जाएगा, इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन बनाने की बात आ रही है। एक और बात आ रही है पीपीपी प्रोजेक्ट। मैं थोड़ा सा ही इसमें कहूंगी, समाप्त करूंगी। पीपीपी प्रोजेक्ट पर भी बड़ा विश्वास है, अपने भाषण में उसका उल्लेख किया, ठीक बात है, मगर पीपीपी प्रोजेक्ट का सही अर्थ तो ध्यान में लीजिएगा। इसमें यह होती है जो साथी पार्टनर है उसकी सहभागिता होना चाहिए, केवल उसने फायदा नहीं उठाना है गवर्नमेंट के कंसेशंस का या उनकी बातों का, तो साथ ही साथ रेलवे का भी फायदा करना चाहिए। लेकिन आज ये क्या हो रहा है कि पीपीपी की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये अनुभव है, पिपावा प्रोजेक्ट का भी अनुभव आपके साथ है। मैं अभी तो गई थी एक बार पुरी, वहाँ एक अच्छा खासा होटल, मगर मुझे बताया गया रेलवे का ही वो पीपीपी प्रोजेक्ट, और बोले घाटे में चल रहा है, हालांकि पूरा पुल चल रहा था मगर दिखाते घाटा है। कई बार ये होता है, आप जरा देखिए, कोई ना कोई अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद चले गए उधर कॉरपोरेशन में। तो इस बात की ये पीपीपी प्रोजेक्ट में जो होता है, और इसमें ये भी हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए माननीय, नहीं तो ऐसा होगा कि हमारी भी इंडियन एयरलाइंस जैसी स्थिति हो जाएगी। 3G एयरपोर्ट तो बना दिया, मगर इंडियन एयरलाइंस एक कोने में है, बाकी किसी के लिए। तो पीपीपी प्रोजेक्ट बनाते समय ये ध्यान में रखो। मैं इतना ही कहूँगी, लंबित परियोजनाओं की बात है आखिरी में, और लंबित परियोजनाओं के समय कभी ध्यान में नहीं, बिल्कुल मंत्री जी ने ठीक बात तो कही कि अनेकानेक बनती जाती है, पूरी नहीं होती क्योंकि आवंटन नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2 मिनट बात करूंगी, जाता नहीं, वो मेरी अपनी नहीं, मैं पूरे मध्य प्रदेश की करूंगी। लेकिन होता यह है, जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि प्रोजेक्ट बन जाता है, प्रोजेक्ट बनने के बाद मेरे पर यहाँ एक प्रोजेक्ट है, अब यहाँ हमारे मंत्री जी नहीं है उस एरिया के, भूरिया जी, ये था देवास, मक्सी देवास होते हुए इंदौर दाहोद, पूरा आदिवासी एरिया है। और जब बना तब 370 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, ध्यान नहीं दिया, हमने धीरे धीरे मक्सी देवास पूरा कर लिया। मगर अब बात यह हो गई कि पूरा नहीं किया, आवंटन नहीं दिया, इसके कारण वो प्रोजेक्ट अब 1470 करोड़ का हो गया। उसके बाद और बात हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी गए थे झाबुआ में, शिलान्यास किया 2008 में, और ये कहा गया कि अभी 2 साल में 3 साल में बन करके तैयार। बिल्कुल, मुझे भी बार बार कहा गया था आप इसमें सफर कर सकोगे। आज इतना आवंटन कितना मिलता है, 1470 करोड़ के प्रोजेक्ट को कभी 70 करोड़ कभी 40 करोड़, कैसे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे? तो इस पर भी सोचना जरूरी है। बजट में आपने दिखाया है धार, वो छोटा उदयपुर धार बोले पूरा हो गया, कहाँ पूरा हो गया? और ये जो आवंटन बढ़ता जाता है, पूरा नहीं होता, प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। प्रोजेक्ट बनाते समय रेलवे की एक पद्धति है, रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता है, आरओआर। मगर मैं कहती हूँ ये खर्च किए हुए पैसे का भी रेट ऑफ रिटर्न निकालो, क्या मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है समय पे, नए नए प्रोजेक्ट खोले जाते हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश की मैं क्या कहूँ, माननीय अध्यक्षा जी, उपेक्षा करना तो तय। उनको लगा कि एक प्रोजेक्ट विदिशा में दे दिया पूरा मध्य प्रदेश। आज बुंदेलखंड की योजना अटल जी के समय उसकी थी, भिंड से हरपालपुर महोबा सर्वे हुआ था, कुछ नहीं, बुंदेलखंड की बात होती है। उसका सभी कई सारे प्रोजेक्ट है, गुना इटावा है, भिंड इटावा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट पर, कोई आवंटन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं एक ही बात कहूंगी, मेरे समझ में नहीं आता है, एक गाड़ी अभी डिक्लेयर हो गई, मैं धन्यवाद देती हूँ वैसे, हमारी बहुत सालों साल से मांग थी इंदौर बेंगलोर, अनंत कुमार जी, मांग तो बहुत थी, गाड़ी आपने दे भी दी इंदौर यशवंतपुर के लिए। आप समाप्त करिए सुमित्रा जी। मगर अध्यक्षा जी समझ तो लीजिएगा, ये जो गाड़ी दे दी है ना, ये गाड़ी जाएगी इंदौर इटारसी होते हुए, अमरावती होते हुए आगे जाए, लेकिन बीच का जो नारखेड़ अमरावती लाइन बनी नहीं है अभी, और गाड़ी दिखा दी नारखेड़ अमरावती उड़ेगी। अध्यक्ष जी थोड़ा इन पर ध्यान दिया जाए।
ठीक हमने है। छोटी छोटी बोल दिया, बातें आपने कही सब थी, points तो बोल मैं दिए। बार बार लिखती रहती हूँ, वो तो कुछ दिया नहीं है। मगर इतना ही मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, जिस तरीके से वर्णन किया है, हमारी इंदौर पुणे नहीं करी जो रेगुलर करना चाहिए थी। एक गाड़ी में अध्यक्ष जी, छोटी सी बात, कैसे रेलवे की गलतियां होती है। हम मांग रहे थे रिवांचल एक्सप्रेस जो रीवा से भोपाल आती है, 10 घंटे पड़ी रहती है, हमने कहा उसको इंदौर तक बढ़ाइए, वो नहीं बढ़ाई। मालूम नहीं किसी के कहने से इंदौर रीवा गाड़ी दे दी। वो जाएगी कहां से? घूमते 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 मोर देन 40 आवर्स करते हुए वो पहुंचेगी गुना इटावा या कहीं करते हुए, बिना गुना करते हुए पहुंचेगी। जो सरल मार्ग है वो नहीं करते हैं। अब किस बात का धन्यवाद दे? इस प्रकार से तो रेलवे चल रही है। और इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है, आपके मंत्री जी ने कुछ बात कही थी, खंडे झुके हैं, बेचारी रेल ऐसी हो गई है। मेरा इतना ही निवेदन है, कंधे मत झुका, शल्य क्रिया कर। कंधे मत झुका, शल्य क्रिया कर। रेल को बेचारी मत बना, सामना कर और उसके अनुसार अपनी जो प्रयोग है वो प्रयोग कर। CPC चाको।